ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের সপ্তম দিন গাজায় একের পর এক বাড়ি যেভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। ইসরায়েলি হানায় গাজা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলেও চরম প্রভাব পড়েছে। জেরুজালেম পুলিশ স্টেশনের কাছে চলল গোলাগুলি। হামাসের ৩৫,০০০-এরও বেশি ডেরায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনা। ৬,০০০-এরও বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়েছে গাজার বিভিন্ন জায়গায়। চলছে টানা বোমা বর্ষণ। আজ পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হামাস। সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ২,৮০০ ছাড়িয়েছে। হামাসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ব্রিটেনের সমর্থন পেয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের রয়্যাল নেভি জাহাজ পাঠাবে ব্রিটেন, এমনটাই জানা যাচ্ছে। এর আগে আপনারা জানেন যে আমেরিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইসরায়েলকে এবং যুদ্ধ বিমান তারা পাঠায় এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তারা পাঠিয়েছে, এবং এবার যেটা জানা যাচ্ছে যে ব্রিটেনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে যে ছবি আপনারা দেখছেন, একেবারে একের পর এক বোমা বর্ষণ গাজায়, একের পর এক বাড়ির ধুলোয় মিশে যাচ্ছে, মাটিতে মিশে যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের আজ সপ্তম দিন এবং যেমনটা আজ ঘটেছে যে জেরুজালেমে পুলিশ স্টেশনের কাছে চলেছে গোলাগুলি। হামাসের ৩৫,০০০-এরও বেশি ডেরায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনা। ৬,০০০-এরও বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। আজ পাল্টা হামলা হুঁশিয়ারি দিয়েছে হামাসও। আর এই সংঘর্ষের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত ২,৮০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইসরায়েলের রয়্যাল নেভির জাহাজ পাঠাবে ব্রিটেন, এমনটাই জানা গিয়েছে। হামাসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ব্রিটেনের সমর্থন পেয়েছে ইসরায়েল। গাজার দিকে একের পর এক এগোচ্ছে ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক, সেই ছবিও আপনাদের আমরা দেখাচ্ছি। এই যে ছবি দেখছেন, গাজার দিকে এগিয়ে চলেছে একের পর এক ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক, এবং গাজাতেও যে ছবি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের দেখাচ্ছিলাম যে একের পর এক বোমা বর্ষণ এবং তাতে ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে শহরটা। গত ৭ দিন ধরে চলছে ইসরায়েল হামাসের এই সংঘর্ষ এবং একের পর এক বোমা বর্ষণ, মিসাইল হামলা, কি নেই সেখানে। প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অসংখ্য মানুষ তারা ঘর ছাড়া, ত্রাণ শিবিরে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। উদ্ধার কাজ চলছে, কিন্তু হামলা পাল্টা হামলার রেশ এখনো পর্যন্ত থামেনি। এখনো পর্যন্ত সেই সংঘর্ষের ছবি রোজই আমাদের ভয় ধরাচ্ছে। জেরুজালেম পুলিশ স্টেশনের কাছেও গুলি চলেছে। আজ ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের সপ্তম দিন এবং সপ্তম দিনেও টানা চলছে বোমা বর্ষণ। ৬,০০০-এরও বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি, গাজা সীমান্তের দিকে এই মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক। হামাসের ৬০ জঙ্গিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনা, এমনটাই জানা গিয়েছে। আজই চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে হামাসের পক্ষ থেকে। टैंक का कॉन्वॉय का मूवमेंट शुरू हो गया है और इनफैक्ट अब मैं गिनती भी भूल गया हूँ रोमाना। इतने टैंक्स, इतनी आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रही हैं कि मुझे अब गिनती भी याद नहीं रही कि कितने होंगे। शुरुआत में लगभग 1 घंटे पहले तक हम रिपोर्ट करके बता पा रहे थे कि कितने नंबर होंगे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ियों के पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से भी और टैंक्स के कॉन्वॉय निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि ये सारे के सारे टैंक्स अब गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी आगे फॉरवर्ड पोजीशन पे हैं, बॉर्डर के पास हैं गाजा के। अब ये टैंक्स कहाँ जाएंगे या सीधा ही कूच करेंगे, ये सबसे दिलचस्प बात होगी, क्योंकि यही दर्शाएगा कि क्या काउंटडाउन शुरू हुआ है गाजा पर अटैक का, या फिर गाजा पर अटैक की शुरुआत हो गई है। और इसीलिए अब अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि किस तरह से जो टैंक्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो आगे कितना बढ़ेंगे और कहाँ तक ये जाएंगे। क्या और आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करके इन्हें आगे रोका जाएगा, या फिर इन्हें सीधे गाजा में कूच करने के लिए कहा जाएगा। ये बड़ी तादाद में टैंक्स, इनफैक्ट ये देखिए, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, दूर देखिए, तीसरा कॉन्वॉय आया, खत्म हुआ, चौथा कॉन्वॉय वेट कर रहा है टैंक्स का। ये वही लोकेशन है रोमाना जब हमने दर्शकों को 24 घंटे पहले दिखाया था। 500 से 700 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल सब यहाँ पर तैयार भी है और तैनात भी है। और एग्जैक्टली गिनती खत्म हो जा रही है। मुझे याद नहीं रह रहा है कि कितने टैंक्स यहाँ पर हैं जो इतने ज़्यादा मूव कर रहे हैं। शुरू में मैं 25, 50, 100 तक गिन पाया, अब उसके बाद में दिखाई नहीं दे रहा है कि उन पहाड़ियों के पीछे से और कितने कॉन्वॉय निकलकर सामने आएंगे
और इसीलिए ये बड़ी संख्या ये साफ संदेश दे रही है कि गाजा पट्टी की तरफ डीप पेनिट्रेशन जरूर किया जाएगा। जो बड़े टैंक्स का मतलब साफ होता है, आर्टिलरी गन्स का मतलब साफ होता है कि गाजा पट्टी पर अटैक किया जाएगा और वो काफी अंदर तक किया जाएगा। और इसीलिए इस डीप पेनिट्रेशन की जो एक ट्रेलर में कहता हूं वो जरूर यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है गाजा पट्टी का और इतने सारे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स अगर एक साथ मूव कर जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितनी लंबाई चौड़ाई है गाजा की, ये घंटों वाली बात होगी। लेकिन उन कुछ घंटों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमास को भी ये पता है। ऐसा नहीं है कि केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस कुछ सीक्रेटली प्लान कर रही हैं, हमास को भी ये पता है कि इस तरह के टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है। तो ये वो भी अपनी तरफ से तैयारी किए होंगे, उन्होंने माइंस बिछाई होंगी, उन्होंने ट्रैप्स कई सारे किए होंगे, उन्होंने बहुत सारे स्नाइपर्स लगाए होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स लगाए होंगे, एंटी टैंक मिसाइल्स को भी बाकायदा संभाल के रखा होगा उन्होंने अभी तक। अगर बाकी देशों से, ईरान या फिर लेबनान से उन्हें सपोर्ट मिलता है तो इन टैंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक और बड़ा कॉन्वॉय टैंक्स का हमारी तरफ बढ़ता हुआ, और अभी भी वो कॉन्वॉय का एंड जो है, जिसका उसका दूसरा सिरा है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा से जूम करके भी कैमरामैन मान आपको बता पाएंगे, लेकिन उसका दूसरा सिरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में टैंक्स और आर्टिलरी मूव की जा रही है।